thing, plane mirror. You know, this is a plane mirror, and when a ray of light falls on it at some angle, draw normal to mark that angle. Normal means perpendicular, it should be normal always. This ray जो मिरर की तरफ आ रही है, definitely that is going to be incident ray. Angle that it makes with normal is called angle of incidence, I. We denote it by symbol I. ठीक है? After striking the mirror, it gets reflected, it goes back at the same angle. ठीक है? This is reflected ray, and the angle that reflected ray makes with normal, that is called angle of reflection. तो क्लास में पहले हमने इसको ऐसे बनाया था, जैसे मर्जी बना लें, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, नो प्रॉब्लम, वन एंड द सेम थिंग. जैसे मर्जी बना लें, वन एंड द सेम थिंग, राइट. So this is the diagram showing reflection of light through a plane mirror. Reflection क्या होती है, चलो बताओ. What is reflection of light, कुणाल? रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट का मीनिंग ही तो पूछ रही हूँ मैं. रिफ्लेक्ट वर्ड, हाँ. Bouncing back of light after striking a smooth and shining surface, after striking a mirror, that is called reflection of light, right? So is this diagram clear? Now what is the focal length of a plane mirror? What is the magnification of a plane mirror? What is the focal length of a plane mirror? Anybody raise hand who can tell me what is the focal length of a plane mirror? What is the focal length of a plane mirror? Nobody knows. Aryan, आप बताओ. Focal length of a plane mirror is infinite. Radius of curvature is also infinite. And magnification is +1. Magnification is positive, that means that the image is virtual and erect. Whenever the magnification is positive, that would mean that the image is virtual and erect. And 1 means size of object and image is the same. 1 means size of object and image is the same here. Okay, these are important questions regarding plane mirror. अब हम सारा सिलेबस कर चुके हैं, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस पता होने चाहिए. Number of images formed by plane mirror. Suppose two plane mirrors are kept at certain angle with their shining surfaces like this, and an object is kept here. Theta is angle between the mirrors. How many images are formed? What is the formula? Number of images formed का क्या formula है? N is, number of images is 360 by theta if n is odd, and 360 by theta -1 if this number, if this n was even. अगर ये 360 by theta रेशो आपकी इवन आती है तो उसमें से 1 माइनस कर दो. अगर ऑड आती है तो ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ इमेजेस विल ऑलवेज बी ऑड. नंबर ऑफ इमेजेस विल ऑलवेज बी ऑड. इवन नहीं होनी चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, लाइक दैट, राइट. ऑल राइट. Image formed by plane mirror has 5 characteristics. Who will tell me कि मतलब इमेज कैसी बनती है प्लेन मिरर के थ्रू? Tell me 5 characteristics of image formed by a plane mirror. Who will tell? First is virtual, second is erect, 2 हो गई, और सेम साइज की, अभी हमने बोला कि M1 है, इमेज इज ऑफ सेम साइज. थर्ड, it is formed at same distance from the mirror. Distance between object and mirror is same as distance between image and mirror. Same distance भी है, same size भी है. Fifth property क्या थी? Last. Which is the last property? Who will tell me? Last property is image formed is laterally inverted.
left hand side appears to be the right, and vice versa when an object is kept in front of a plane mirror. So these are 5 characteristics of image formed by a plane mirror. These are 5 characteristics of image formed by a plane mirror. Then we come to spherical mirrors. Then we come to spherical mirrors. Spherical mirrors. So there are 2 spherical mirrors. Which mirror is this? पहले ये ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए. ये है concave mirror. What is the other name of this mirror? Converging mirror. It is converging mirror, dentist mirror, makeup mirror. To see the magnified image. ये वाला मिरर यूज करते हैं जब भी हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, because it can form magnified images also, diminished images also, real also, virtual also. ठीक है. Second type of mirror is convex. स्पून की अंदर वाली साइड, that is convex mirror. Other name of convex mirror is diverging mirror. And see what language they have used in the question. Security mirror. इसको security mirror भी कह देते हैं, because depending upon its uses, we know that it is used for vigilance. Security reasons के लिए यूज करते हैं इसको. तो इसको सिक्योरिटी मिरर की लैंग्वेज भी देखो यूज की हुई है. ये लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन था, तो उन्होंने ये लैंग्वेज यूज की थी. ना डाइवर्जिंग लिखा था, ना कन्वेक्स लिखा था, उन्होंने बोला था सिक्योरिटी मिरर. तो पहले तो मिरर आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है. देन सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. व्हाट डू वी कॉल द सेंटर ऑफ लेंस? लेंस के सेंटर को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर. किसी ने फोकस लिखा है, किसी ने प्रिंसिपल एक्सिस लिखी है, किसी ने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दिया है, किसी ने पोल लिख दिया है. ऑप्टिकल सेंटर आपको टर्मिनोलॉजी इसीलिए करवाई गई थी, पहले टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. लाइन पासिंग थ्रू पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. लाइन पासिंग थ्रू पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. और बिल्कुल ये जो स्फीयर अगर आप कंप्लीट करो, उसका जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इधर भी अगर आप ये स्फीयर कंप्लीट करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. बिल्कुल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में फोकस है. बिल्कुल मेजर करके बनाना है आपने. सेम वे इधर भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस. पहले तो ये चीजें आपको जो नहीं आती हैं ये फिक्स करो अपने माइंड में, जो 7th क्लास से आपको पढ़ाई जा रही है. ठीक है. तो बच्चों को यही नहीं पता, PFC की जगह पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे, ए पॉइंट लिख रहे. इसको पी पोल को ही लिखना है. F means focus, C means center of curvature, and this should be the order. पहले तो ये अपने माइंड में फिक्स करो मिरर कैसे बनाना है, कौन से मिरर का क्या नाम है. बिकॉज आफ्टर चेकिंग योर पेपर्स आई सॉ दीज थिंग्स कि मिरर पूछ रहे हैं, लेंस बना रहे हो, कनकेव मिरर पूछ रहे हो तो कन्वेक्स बना रहे हो, रेज किधर को जा रही हैं कुछ पता नहीं लग रहा. तो इसलिए पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है. ओके. पहला रूल क्या था? इफ एनी रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट शुड पास थ्रू फोकस. रूल पता है आपको, पर आप क्या कर रहे हो जब आप डायग्राम बना रहे हो. आई गिव यू वन एग्जांपल. जब आप ये आपको एक रे डायग्राम आया था, कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल. ये आया हुआ है ना डायग्राम आपको, उसमें 1.5 मार्क का, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन था. एक पार्ट था ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्शन, सेकंड क्वेश्चन था ड्रॉ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल. ठीक है. तो आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है, ये जो रे पैरेलल ली है उसको आपने यहां से इस पॉइंट से निकाल दिया, जबकि आपको रूल पता है कि जो पैरेलल है वो फोकस में से जाएगी. फोकस में से नहीं निकाला, आपने यहां से निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है इधर कहीं जाती है, इतना याद है आपको.
बना के कभी देखा नहीं है, तो फिर ये गलतियां होती हैं। तब रूल ये वाला अप्लाई करिए ना यहाँ पे, ये फोकस में से पास करेगी। एक रे ये बनी, फिर यहां से निकालोगे, आपको देखने में ठीक लग रही होगी पर उसमें एक मेजर मिस्टेक होगी, आपके नंबर कटेंगे। फिर ये लाइन यहां से नहीं पास करनी, फोकस में से पास करनी है। वी आर फॉलोइंग दिस रूल, राइट। सेकेंड रूल क्या था? इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू फोकस, it will go parallel to the principal axis. It should go parallel to principal axis. वो हम यहाँ इस केस में नहीं कर सकते, इस केस में वो हम नहीं कर सकते, इसको रहने दो। थर्ड रूल था इफ एनी रे इज पासिंग थ्रू सी, तो ये वापस आ जाएगी, एक एरो आने के लिए, जाने के लिए। सो मेनी ऑफ यू आर मिसिंग एरोज, आप लोग एरोज नहीं डाल रहे हो उसके ऊपर। जहां जहां रे जा रही है उतनी बार एरो डालना है। मैंने देखो ये वाली रे पे 2 एरोस डाल दी, ये कंपल्सरी है। आई टोल्ड यू इफ यू डोंट मार्क एरोस दीज विल बी लाइंस नॉट रेज। आप रेज ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एरो मार्क करना जरूरी है। ये मैथ्स नहीं है, फिजिक्स है, ठीक है। हाँ, सी में से। अब देखो सी में से हम पास करते हैं, देखो सी में से और ऑब्जेक्ट में से पास होनी चाहिए। ये दूसरी रे कहीं की हवा में उड़ रही होती है, यहाँ पे होती है। सी में से तो पास करनी है, पर ये निकल तो ऑब्जेक्ट में से रही है ना। जैसे ही ऑब्जेक्ट में से कई रेस जा रही हैं, वो आप बना रहे हो, तो ये सी में से जाएगी। जब ये जाएगी तो वापिस आ जाएगी टकरा के, वापिस इधर को जा रही है। अब आप देख रहे हो दोनों में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो दे विल नेवर मीट इन दिस डायरेक्शन। तो अब क्या करोगे? टू ऑब्टेन द इमेज यू विल प्रोड्यूस दीज रेज बैक। कईयों ने इतना बना के छोड़ दिया, इमेज कहाँ बनी? इमेज तो बनाई नहीं आपने। अब ये यहाँ पे कट कर रहा है, कईयों ने इसको यहाँ छोड़ दिया। जहां कट कर रहा है वहां पे इमेज तो बनाओ ना। और ये वर्चुअल इमेज है, इसलिए डॉटेड बनानी है, सॉलिड लाइन नहीं बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इमेज बन गई। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। क्योंकि वर्चुअल क्यों है? रेज आर एक्चुअली नॉट मीटिंग हियर। हमने अज्यूम किया, इमेजिन किया कि पीछे जाके कहीं मिल रही होंगी, तो दे अपीयर टू मीट, दैट मीन्स इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, आप देख रहे हो सीधी बनी, एंड इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर इन दिस केस। तो हम लोकेशन नहीं बता सकते इसकी यहाँ, but nature of the image is virtual, erect and magnified. All right. तो ये 1.5 नंबर का आपका केस था विद कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ये शाइनिंग सरफेस है। पहले तो अंडरस्टैंड दिस, आप कभी इधर ऑब्जेक्ट रख देते हो, कभी इधर रख देते हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा, जहां मन करता है वहीं पे रख देते हो, ठीक है। तो ये शाइनिंग सरफेस है। ऑब्जेक्ट हमेशा हमने लेफ्ट पे ही रखनी है, क्योंकि आप देखो रखने को तो उधर रख सकते हो, बट एक कन्वेंशन रखो, हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर ही रखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जब रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर इट गोज लाइक दिस। तो ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड इट सीम्स एज इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ फोकस। ऐसे लगता है कि ये फोकस में से आ रही, ठीक है। अगर फोकस में से आ रही हो, लगता है, अगर ऐसे आ रही है कि लग रहा है फोकस में से आ रही है, फिर कैसे जाएगी ये? सेकेंड रूल, इट विल गो पैरेलल, पर उधर ही मिरर उसको वापस भेजता है। लेंस में से बाहर चली जाती है दूसरी साइड पे, पर मिरर तो उसको वापस भेजता है। मिरर रे को रिफ्लेक्ट करता है, उसको उसी साइड पे वापस भेजेगा। रिमेंबर दिस, लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, उसको बेंड करता है, पर दूसरे मीडियम में रे जाती है। कनकेव लेंस भी डाइवर्जिंग है, बट उस केस में रे उधर को जाती है। आप देखो ये कनकेव लेंस था, ठीक है,
रे फोकस में से आती है, लग रही है ये सेम चीज, पर अब इसमें पैरेलल जाएगी उस साइड पे, दूसरी साइड पे जाएगी, वापस नहीं जाएगा, क्योंकि लेंस रे को वापस नहीं भेजता, रिफ्लेक्ट नहीं करता, रिफ्रैक्ट करता। ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। देखिए कन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, इट इज सेंडिंग द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट बैकवर्ड, उसी साइड पे। ये डाइवर्जिंग लेंस है, कनकेव लेंस, ये भी पैरेलल भेज रहा है पर दूसरी साइड में भी। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी आप। एंड आई नो दीज थिंग्स यू नीड टू प्रैक्टिस। और ये सुन के पढ़ के ऐसे नहीं आती हैं, जब तक आप खुद ड्रॉ नहीं करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको। आप जब एक चैप्टर कर लिया आपने, एक पेज लो, बैठो, ठीक है, छोटा छोटा उसको आप रिवाइज करो अपने माइंड में, इसका था तो मैं ये ऐसे बनाना है, ये है तो ऐसे बनाना, तो इट डजंट टेक मच टाइम बट इट गेट्स फिक्स्ड इन योर माइंड। फिर आप बस रिवाइज करो अगली बार तो हो जाएगा, नहीं तो हर बार रट्टे मारने पड़ेंगे, हर बार लर्न करना पड़ेगा, फिर भी भूल जाएगा। तो हमेशा जैसे मैथ्स के लिए यू सिट विद अ कॉपी एंड अ पेन, डू फिजिक्स ऑल्सो इन द सेम। आप सोचते हो कि जैसे बायो को हमने लर्न किया, हमने केमिस्ट्री में डेफिनेशंस लर्न की हैं, वैसे ही फिजिक्स भी कर लेंगे। फिजिक्स मैथ्स के ज्यादा क्लोज है, ठीक है, उसमें हम एक्सटेंसिवली मैथ्स यूज कर रहे हैं। और डायग्राम्स बनाने के लिए तो आप बायो के भी बना के देखते हो ना, इसके भी बना के देखो। ये मत सोचो कि ये तो ऐसे ही है, लाइन नहीं है, तो गलत है फिर, ठीक है। चलो अब ये हो गए आपके मिरर्स का मेन जस्ट। अब इसके फॉर्मूला देखो, फॉर्मूलाज भी नहीं आते। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज 1/u प्लस 1/v, प्लस आएगा प्लस। अगर आप 1/v माइनस 1/u कर देते हो, दैट बिकम्स लेंस फॉर्मूला। ये कैसे माइंड में बैठेगा आपके, मुझे नहीं पता। जिस बच्चे ने एक भी न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं करके देखा है, वो कैसे करेगा ये? इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, एटलीस्ट हम फॉर्मूला तो लर्न कर सकते हैं, एटलीस्ट वी कैन लर्न द फॉर्मूला, ठीक है। मिरर्स का दूसरा फॉर्मूला है F इज टू R/2, ठीक है। अब कईयों को कंफ्यूजन होती है, एक बच्चे ने एग्जैक्टली ये लिखा है F इज टू 2C। इसका क्या मतलब है कि एक तो उसको ये नहीं पता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस लेते हैं हम फॉर्मूला में, R अपनी तरफ से उसने R लिखा, मतलब उसको यही नहीं पता कि फिर P कहाँ है, F कहाँ है, C कहाँ है। जिसने ये लिख दिया उसको ये पता ही नहीं है वो पॉइंट्स कहाँ पे हैं। उसने सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी डबल कर दिया। कहाँ फोकल लेंथ 5/2 2.5 मीटर यूज करनी थी न्यूमेरिकल में, कहाँ उसने डबल करके 10 ले लिया, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। कन्वेक्स मिरर एंड लेंस दोनों की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, कनकेव मिरर एंड लेंस दोनों की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। कैसे ये याद होगा, मैं आपको कितनी बार बता सकती हूँ। अगेन द सेम मिस्टेक्स यू पीपल आर मेकिंग इन योर पेपर। एक फोकल लेंथ का साइन गलत, इसका मतलब पूरा गलत। फोकल लेंथ का साइन गलत, यू का साइन गलत, कोई भी चीज आपने प्लस की माइनस, माइनस की प्लस कर दी, फॉर्मूला गलत, आगे सारा न्यूमेरिकल रॉन्ग है, कोई फायदा नहीं। आपको सिर्फ फॉर्मूला का हाफ नंबर मिलेगा। कहाँ आपको 2 मिलने थे, कहाँ हाफ मिलने, एक ही क्वेश्चन में से 1.5 कट रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। तीसरा कौन सा है? मैग्निफिकेशन का। बेसिक इज H2/H1। अब इसकी तो फॉर एग्जांपल जरूरत नहीं पड़ी, चलो ठीक है, इस पेपर में जरूरत नहीं पड़ी, H2/H1 वाज नॉट गिवन, नहीं तो ये भी आप लोग उल्टा लिखते हो। इसको भी कई बच्चे H1/H2 लिख लेते हैं। कितने फॉर्मूले? 1 2 3, 3 फॉर्मूले में हम लर्न कर सकते हैं मिरर्स के, सिर्फ 3। और
equal to minus V by U. Magnification is minus V by U for both the mirrors. चाहे कनकेव चाहे कन्वेक्स, ये तीन फॉर्मूले आपके एज सच यूज होंगे। बाकी न्यूमेरिकल के अंदर आपका U जो है तब आपने साइन लेके करना है क्वेश्चन। अगर सिक्योरिटी मिरर दिया था, कन्वेक्स मिरर दिया था, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लगनी थी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो कईयों ने, आप में से पता होगा जिन्होंने लिखा -2.5 लिख दी फोकल लेंथ, सारा आगे गलत हो गया। यू हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं? यू नेगेटिव लेते हैं। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, H1 is always positive, size of object, ये हमेशा लेंस है, मिरर है, जो भी है, ये दोनों चीजें हम इसी साइन की लेते हैं। रिमेंबर दिस। केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, वो आपके 6 केसेस है कनकेव मिरर के और 2 केसेस हैं कन्वेक्स मिरर के। अगर आपको उसमें से कोई डाउट है तो मैं करवा देती हूँ। वैसे सारे उल्टे सीधे डायग्राम बनाए, न्यूमेरिकल के साथ भी जो डायग्राम बनाया मिरर्स का, कन्वेक्स मिरर का, पता नहीं कैसे बनाते हैं। कन्वेक्स मिरर इधर को है, इधर एक बॉक्स सा बना देते हैं, ऐसे 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 क्रॉस मारा, चलो पता नहीं ये किसने तरीका सिखा दिया आपको। कई बच्चों ने ऐसा डायग्राम बनाया, चलो न्यूमेरिकल में डायग्राम मैंने देखा ही नहीं, 2 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का होता तो हम डायग्राम को 1 नंबर का रखते। 2 मार्क्स का था तो अभी हमने डायग्राम को कोई क्रेडिट में लिया ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा डायग्राम पर फिर भी मैं देख रही थी, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाए हैं। अगर कहीं उसके मार्क्स होते तो वो गलत होता, ठीक है। बताइए केसेस में डाउट है, कोई स्पेशल केस में डाउट है? वैसे एक तो मैंने बनवा दिया, ये वाला गलत होता है यूजली। कन्वेक्स मिरर का देख लो, जो हमेशा एक ही होगा, और न्यूमेरिकल भी सिक्योरिटी मिरर का था, कन्वेक्स मिरर का, तो उसमें जो डायग्राम बनना था वो ये था। सिक्योरिटी मिरर, कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, वन रे विच इज पैरेलल, अब ये आपने ही लेनी है, gets diverged as if the ray is coming out of focus। एक रे बना दी हमने, हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। One ray we have drawn that appears to come out of focus। दूसरी रे हम कहां से लेंगे? C से, C में से पास करते हैं। अब देखो मिरर यहां तक है तो आप सॉलिड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो, मिरर के बाद इधर जो भी लाइन आएंगी वो डॉटेड आएंगी, वो इमेजिनरी है, तो आप सीधी एक लाइन बना देते हैं। ऐसे नहीं बनाना है, मैंने कभी भी नहीं बनाया इसको ऐसे। सी में से ये लाइन जो जा रही है वो यहां से जा रही है और वापस आती लगेगी। एरो दोनों यही बनाने जहां रेज है, डॉटेड पोर्शन पे एरो नहीं बनाने हैं, ठीक है। डॉटेड पोर्शन पे एरो नहीं बनाने हैं आपको। अब देखो ये पहली रे दूसरी रे से कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी स्मॉल इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज बन गई यहाँ पे डॉटेड, वो भी वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड बनाना है। देख लो डायग्राम, so image is virtual, erect and diminished। देख लो ये ध्यान से, ये डायग्राम बनना था उसके साथ, और आप लोगों ने क्या बनाया हुआ है? रिकॉल दैट, डब्बा सा बना देते हो। जहां लाइंस लगा के आपने कट किया वहां रेज नहीं जानी है सीधी, ठीक है। रेज उसकी शाइनिंग, ये प्लेन साइड है ना, शाइनिंग साइड पे रेज पड़नी है, ये चीज ध्यान में रखो।
आज ड्रॉ करने हैं, घर जाके केसेस आपने, ठीक है। हाँ जी, बिहाइंड द मिरर, ये मैग्नीफाइड लग रही है आपको? दिस इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज साइज ऑफ इमेज। कनकेव मिरर ने बिहाइंड द मिरर बनाई थी मैग्नीफाइड इमेज, कन्वेक्स ने डिमिनिश बना दी। वो तो मिरर के नेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, कौन सा मिरर ले रहे हो, क्योंकि ये जो कन्वेक्स मिरर है ये कभी मैग्नीफाइड इमेज बना ही नहीं सकता। कन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा यही बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था कि डेंटिस्ट मिरर कौन सा है आपका, बताओ कौन सा मिरर यूज करोगे डेंटिस्ट मिरर, कनकेव की कन्वेक्स? तो व्हाट अबाउट दोज हु हैव रिटन कन्वेक्स मिरर, बिकॉज इट फॉर्म्स मैग्नीफाइड, रीजन भी लिखा है साथ में, कन्वेक्स मिरर बिकॉज इट फॉर्म्स मैग्नीफाइड इमेज। का मतलब आपको यही नहीं पता कन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइड इमेज नहीं बना सकता, वो ये देखो ये उसकी इमेज डिमिनिश्ड ऑलवेज। वहीं से याद कर लिया करो कि सिक्योरिटी मिरर है, रियर व्यू मिरर है, उसमें हमें व्हीकल छोटे छोटे दिखते हैं मिरर के अंदर, तो वो मैग्नीफाइड इमेज थोड़ी है, वो तो डिमिनिश्ड इमेज है। तो आप जो लिख रहे हो डेंटिस्ट मिरर, वो कन्वेक्स मिरर है, वो कभी भी कन्वेक्स मिरर नहीं यूज करेंगे, वो कनकेव मिरर यूज करेंगे, बिकॉज इट कैन फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? मिरर्स का अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ हो, मिरर्स में कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लो। उसके बाद आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड टू माय सरप्राइज अभी तक आपको यही नहीं पता स्लैब कौन सी होती है, प्रिज्म कौन सा होता है। आपको डायग्राम था शोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, है ना, तो उसमें स्लैब की जगह प्रिज्म बन रहा है। एक बच्चे ने नहीं बनाया, बहुत सारे बच्चों ने बनाया है। ग्लास स्लैब क्या होती है देखिए, और प्रिज्म क्या होता है वो देखिए। दिस इज अ स्लैब, दिखाई भी हुई है, अभी ना दिखाई होती फिर तो पता नहीं क्या बनाते आप। दिस इज अ ग्लास स्लैब, दिस इज ग्लास, एयर ऑन बोथ साइड, ग्लास इज डेंसर, air is rarer, so ray of light travels from rarer to denser, denser to rarer, दो टाइम बेंड होगी, whenever medium will change ray will bend। तो हम एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं, ड्रॉ नॉर्मल हियर। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी नॉर्मल ऐसे क्यों होती है, ये इंसिडेंट रे ऐसे नॉर्मल कौन बनाता है ऐसे? कई बच्चों ने ऐसे नॉर्मल बनाई हुई है। नॉर्मल नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है ना, ऐसे कौन बनाता है? फिर क्या करते हो, इसको सीधी बना देते हो, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, उसको सीधी बना देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। चलो डायग्राम बन गया, इसको आप बेंड करोगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये वाली रे सीधी ले जाया करो आगे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई आपकी। अगेन ड्रॉ नॉर्मल एयर, वो भी सीधी होनी चाहिए, यहाँ पे फिर ऐसे नॉर्मल बना देते हैं। ये डायग्राम बन रहा है कई बच्चों का, कहां से किया ये डायग्राम? तो इसको बेंड करना है, नाउ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल है, उसके अवे ऐसे बेंड करना है कि ये इंसिडेंट रे के पैरेलल हो। दिस इज इमर्जेंट रे, इसका नाम भी नहीं पता, उसको लिखते हैं इंसिडेंट रे, इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। Emergent ray, this is angle of emergence, this is angle of refraction, this is angle of incidence, and this perpendicular distance is lateral displacement between emergent ray and incident ray. This distance is lateral displacement. So this diagram was asked, refraction through a glass slab was asked, labeled diagram, ऊपर इंसिडेंट रे लिखना था आपको, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंड मार्क ऑल द 3 एंगल्स
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये डायग्राम कंप्लीट होता है। अब आप सोचिए आपने क्या बनाया था, ये बनाया बहुत बच्चों ने, है ना। आपकी कॉपीज में भी मैं इसको करेक्ट करती रही, जिन्होंने कॉपी नहीं भेजी उनको वो भी नहीं पता चला, है ना। अब देखो प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन अगर पूछी जाए, जो आप लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, आपने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म भी नहीं बनाया, आपने डिस्पर्जन का डायग्राम बनाया, डिस्पर्जन का डायग्राम बना रहे थे। अगर आए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म तो देखिए कैसे बनाने। दिस इज अ रे, ठीक है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है क्योंकि ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका भी देखो आपको प्रैक्टिकल करवाया गया है ना। फिर क्यों गड़बड़ हो रही है, करवाया है ना इसका एक्सपेरिमेंट, फिर कैसे भूल जाता है। बना के दिखाया आपको, यहाँ 2 रेज लगाई थी, फिर इधर 2 रेज आई थी, उनको ज्वाइन किया था, फिर हमारी इमर्जेंट रे बनी। तो ड्रॉ नॉर्मल हियर आल्सो, दिस विल बी इमर्जेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब दोनों को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करिए, इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इंसिडेंट रे को वापस ले जाओ, इमर्जेंट रे को वापस ले जाओ, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो भी हमने मेजर किया था, सो दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। राइट, तो ये है डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। ये स्लैब है, ये प्रिज्म। So if you have any doubts now you can ask. इन डायग्राम्स को पहले अच्छी तरह से देखिए।